next is the part of axial skeleton we will see one by one. So axial skeleton consists of skull. It is made up of skull, vertebral column, ribs and sternum. So we will start with the skull part. How many bone form the axial skeleton? If you remember, axial 80. How many? Axial is 80. So the skull is basically the heaviest part of your skeleton. So it is the heaviest part of your body. And in case of human being, the skull is dicondylic. Many times in AIIMS also exam, in NEET or in MSCIT also, this question is very, very important. They will ask what type of skull is present in human being, because in case of like reptiles it is like monocondylic, but in case of human it is dicondylic. What is meant by di? Two, and these condyles are two elevations. They are present, okay, in the on the back side of the skull, and that's why it is called the dicondylic. Okay, so dicondylic type of skull is present in case of human being. It is also present in case of, like you can say, it is in mammals. In case of mammals, कहाँ रहेगा ये? Mammals and amphibian. In case of mammals and amphibian, the skull is basically the dicondylic. अगर monocondylic अगर हम लोग बोलेंगे, it is present in case of birds and reptiles. Okay, so monocondylic यानी एक ही कॉन्डाइल रहेगा. किसमें रहेगा? बचे क्या? बर्ड, दैट इज एव्स एंड रेप्टाइल्स. So this is a MCQ. Okay, so the skull which is present, it is a monocondylic in case of reptiles and birds, and dicondylic in case of mammals. We comes among the mammals. So why we call the mammals? So mammals have the hair on the body and mammary gland. Amphibian, you already know, they can live the life inside the water and on the land. Birds, what is the particular property of the birds? In case of birds, why they can fly? Because their bones are pneumatic. Their bones are pneumatic. And reptiles, okay, so reptiles, you already know, they are a crawling animal. So that is not the part of this chapter. So now we'll start the skull. We already know the axial skeleton is made up of how many bone? Axial skeleton is made up of 80 bone. Out of that 80 bone, the skull comprises 29 of the bone. How many bones are present in the skull? 29 bone they are present in the skull, and they are divided into 4 रीजन. आपके स्कल के 4 रीजन हैं जिसमें पूरे 29 बोन रहेंगे. कौन से? द फर्स्ट रीजन इज क्रेनियम. इसको हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ब्रेन बॉक्स? क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा? ये बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन रहेगा. सेकेंड रीजन ऑफ ईयर, दैट इज कॉल्ड द फेस. जो आपको सामने से दिखता है, दैट इज कॉल्ड फेस. It is called facial bone of the skull. Then there is one bone which is degenerated usually. It is more cartilaginous, fibrocartilaginous rather than bony, and the name of that bone is hyoid bone. And the most important, the smallest bone which are present inside your ear, and these bones are called ear ossicles. They are called ear ossicles. So if we calculate the number 29 number, so cranium consists of 8 bone. I will use the different pen so you can see that it is consists of 8 bone. Face, F for face, 14. Face 14. Ear ossicle, okay, ear ossicle are 3 plus 3. ये साइड से 3 और ये साइड से 3, okay, that is 3 plus 3. And hyoid bone, okay, it is 1 in number. It is like, that is called the 1 in number. Okay, so total if you see that it is 15 and like 21 and 8, it is total 29 bone. Okay, so these are your brain which are present inside the skull. So your skull is made up of how many bone? It is made up of 29 bone. Okay. Now
What is cranium? Cranium is the brain box. We will see this skull. I will just magnify the image. Okay, so you can see it properly here. Now look, this is human skull. This is basically the human skull. This part is called cranium. This part is called cranium. And this front portion, you can see here, this all front portion, which I am drawing with the help of green color. This is basically the face. This is basically the face. Ear ossicle, if I just see the lateral view, here are your ears. Here are your ears. So inside there are how many ear ossicles? So we cannot see from external. It is inside. Like this is ear and this is the tube. This is the tympanic membrane, and here are 3 ear ossicles. Here are 3 ear ossicles, that is malleus, incus and stapes. We will see that 1, 2 and 3, and they are like moving as per the sound. Okay, so these are your 3 ear ossicles. And hyoid bone, they actually it is present at the base of skull. यहाँ रहेगा वो, right? It is usually not a bony structure. It is like a cartilaginous, fibrocartilaginous bone. So this is like your which one? That is called the hyoid bone. Okay. So now we'll start one by one. So this part is the cranial bone. This total here it is the facial. Ear ossicle इधर से रहेंगे और hyoid bone नीचे से रहेगा. So this is all about your which one? That is called the skull. First we'll start with the cranium. Cranium, you can see this is the hollow portion. This is the hollow. This part is basically the cranium part. अगर आप देखो ये जो दिख रहा है इसके अंदर आपका क्या रहेगा? स्कल रहेगा, राइट? स्कल के अंदर इसको बोलते हैं स्कल, और ऊपर का जो आपको सर्कुलर डोम शेप पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्रेनियम. सो if I enlarge it, you can see it here. So these are the suture. These are called the suture. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देख रहे हैं आप इसको, ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Suture. Suture means these are different bone. They are attached with each other. These are different bone. They are attached with each other. These are basically called the suture. Okay. Now this is the frontal view of your skull. Look at here. Okay. Now if I enlarge it, you can see there is a cavity inside. ये देखिए आपको, this is the cavity. One more time, just concentrate. This is your skull, and now I am showing you the inside cavity. Look, this is the inside. ये पूरा अंदर का आपका कैविटी है. इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग क्रेनियल, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला था? ब्रेन बॉक्स. सो दिस इज बेसिकली द बॉक्स. इनसाइड द बॉक्स देयर इज द ब्रेन, एंड दैट्स व्हाई. सो अभी हम लोगों को ब्रेन नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ बोन्स, बाहर का स्कल पढ़ रहे हैं. सो दिस इज अ क्रेनियल कैविटी. सो दिस क्रेनियल कैविटी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 8 बोन. आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. So this is the only part you are going to study, that is in case of brain box. और इसके अंदर क्या रहेगा? That is the brain. It is a hollow portion. और जब भी कोई चीज hollow रहती, okay, so how will you calculate? It is not like that is called length or weight, or like how will you calculate it? In terms of volume. So what is the basic volume here? So volume, it is like approximately, it is like 400 to like 15 or 1600 cubic centimeter volume. You are calculating the volume. Okay, so like weight, length,
and depth. Okay, so this 3 dimension you are calculated in the centimeter and approximate volume is how much it is, like 1400 to 1600. उतना वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी. आपके ब्रेन बॉक्स की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है, लाइक सीसी हम लोग बोलते हैं उसको. सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 1400 टू 1600 सेंटीमीटर्स. ये पूछ सकते कभी कभी आपको एग्जाम में, राइट. नाउ दिस क्रेनियम इफ यू सी दे आर हैविंग वन लार्ज ओपनिंग. ये जो बॉक्स है इसको एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग रहता. ये ओपनिंग नहीं, दीज आर ऑर्बिट. ये तो आपका फेशियल स्केलेटन में आ जाएगा. इस बॉक्स में एक बहुत बड़ा ओपनिंग है जो नीचे से रहेगा, राइट. इफ यू गो फ्रॉम द बैक साइड, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप एंड साइड व्यू. आई विल शो यू. अब अगर आप नीचे से देखोगे इसको, देखो, आई विल जस्ट मेक इट. And now you can see the opening, one large opening. Look at here, this is what I am talking about. This is one large opening. This opening is called foramina magnum. Why it is called foramina magnum? आपके स्कल का कोई भी स्मॉल ओपनिंग रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन. Why magnum? Magnum means bigger one. Magnum means bigger one. तो ये जो आपको दिख रहा है, this is called the foramina magnum. This foramina magnum is the bigger opening that is present on the, that is you can say that is a bigger opening. इसमें से basically क्या आता है, अगर मैं इसको नीचे करूंगा, देखो आप, राइट. तो यहाँ रहेगा आपका ब्रेन और ये पीछे साइड से, और यहां से बाहर क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड. सो लाइक ये आएगा ऐसा आपका स्पाइनल कॉर्ड. ओके, और ये स्पाइनल कॉर्ड किस में से जाएगा, दीज आर लाइक वर्टिब्रा. पीछे से अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपके वर्टिबल कॉलम से. दीज आर बेसिकली द वर्टिबल कॉलम. वर्टिबल कॉलम है. सो बेसिकली आपको पूछते हैं एग्जाम में, फोरामेना मैग्नम से क्या आता है. फोरामेना मैग्नम से क्या आता है, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड आता है, राइट. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ योर स्कल, नॉट स्कल, क्रेनियल, इट इज कॉल्ड द फोरामेना मैग्नम. ओके, नाउ these are the general thing you have to remember. Now we will go for, we already know how many bones, 8 bones from the cranium. So what are the 8 bones, we will see one by one. Frontal, जो सामने से दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल. parietal, okay, parietal. Then third one is occipital. Fourth one is temporal. Then sphenoid and ethmoid. उसके बाद कौन से, sphenoid and ethmoid. So look at here, frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid and ethmoid. How many it is, 1 2 3 4 5 6. और मैंने कितने बताए तुमको, 8. Why 8? Because this parietal bone, they are paired. तो paired हो गए तो कितने हो गए, they are 2 in number. okay. और दूसरे है आपके ये जो temporal bone है, they are also paired, they are also 2 in number. तो अभी वापस देखो, एक फ्रंटल, 2 parietal, एक ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, एक स्पिनॉइड और एक इथमॉइड बोन. सो टोटल कितने हो गए, इट इज हाउ मेनी, दे आर द 8 बोन. नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू. वो आपको पूछते नहीं एग्जाम में कि कौन सा कहाँ है करके, आपको सिंपल पूछते हैं क्रेनियम में कौन से बोन पेयर्ड है. तो कौन से बोन पेयर्ड है, तो आपको याद रखना है पेयर्ड पी पर से चालू होता. पेयर्ड बोन स्टार्ट फ्रॉम द पी, याद रखना. पेयर्ड parietal, बाकी कोई बोन दिख रहा है आपको पी पर से, तो पेयर्ड parietal इज easy. Parietal, whenever you uttered the word parietal, so T for temporal याद रखना है आपको, right. So how will you remember the paired bone, paired parietal. Parietal is P for parietal and T for temporal. So this parietal and temporal, there are 2 bone, they are occurring paired. So this is all about your which one, paired bone. Now just I will show you in figure where exactly the, अब आप देख रहे हो सामने से, you can see here, ये है आपका फ्रंटल बोन दिखा आपका पूरा एक है, दिस इज अ सिंगल बोन, दिस इज कॉल्ड अ फ्रंटल बोन. अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं. देखो आप रूफ पे आपको
ये पूरा देखो यहां से जो स्टार्ट हो गया फोरहेड से लेके यहां तक. ओके, आई विल जस्ट शो यू हियर. थोड़ा सा कम कर दूंगा. अब देखो आप यहां से यहां तक ये कौन सा हो गया आपका फ्रंटल बोन. ओके, नाउ थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं तो वापस ये आपके हो गए दो. एक ही फ्रंटल है, कहीं आपको टुकड़े दिख रहे हैं नहीं. अब यहां देखो एक इधर से दिख रहा है आपको, एक इधर से. सो दिस इज वन एंड दिस इज वन मोर. तो ये क्या हो गया दोनों पैराइटल. पैराइटल पेयर्ड, पैराइटल पेयर्ड. अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. आई विल जस्ट शो यू हियर. देखो नीचे, तो ये आपका इधर का एक हो गया, इधर का एक हो गया. और यहां पर आप अगर ठीक से देखोगे ये एक बोन है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल. पीछे हो ऑक्सीपिटल एक, सामने वाला फ्रंटल एक, और ये दो पैराइटल. सो ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और ये दो पैराइटल. सो आपको कौन सा हो गया ऑक्सीपिटल हो गया, पैराइटल दो हो गए, और क्या हो गया आपका फ्रंटल हो गया. नाउ वेयर इज द टेम्पोरल बोन, वेयर इज द टेम्पोरल बोन. ओके, वापस हम लोग थोड़ा, ये हो गया आपका पूरा ऑक्सीपिटल बोन. अब देखिए लुक एट हियर. अब वापस ये आपका कौन सा था पूरा बोन, फ्रंटल बोन. ये आपका हो गया एक ही फ्रंटल बोन. ये आपका इधर से एक पैराइटल और वो साइड से एक पैराइटल. ये आपका हो गया ऑक्सीपिटल. अगर आप देखोगे दिस इज द बोन विच इज कॉल्ड टेम्पोरल, विच इज कॉल्ड टेम्पोरल. तो देखो एक ये साइड से टेम्पोरल रहेगा, एंड इफ आई जस्ट मूव द इमेज यू कैन सी ये साइड से एक टेम्पोरल आएगा. सो बोथ द साइड हाउ मेनी टेम्पोरल बोन्स आर 2. सो फ्रंटल, पैराइटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, इधर इधर से क्या हो जाएगा आपका टेम्पोरल बोन. नाउ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बोन टू सी, they are two, sphenoid and ethmoid. The sphenoid and ethmoid, they are like single in number, but they are difficult to see in this skull. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सब तो हो गया. This is like a which one, that is called sphenoid and ethmoid bone. So where exactly the sphenoid and ethmoid bone? Sphenoid is 1 in number, ethmoid is 1 in number. This sphenoid bone is very important. If I just make, हम हमारे स्कल को थोड़ा सा उल्टा करते हैं. You can see here. Now look at here. Okay, here at the base of skull, this is the base of the skull. This is this butterfly shaped bone. You can see this is the butterfly shaped bone. This butterfly shaped bone starting from here, which is go here. Okay, so this bone is basically which one, your sphenoid bone. This bone is basically which one, your sphenoid bone. Okay, and in this sphenoid bone, okay, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा निकलते, right? So sphenoid bone यहाँ रहेगा आपके स्कल के बेस के पास रहेगा, और अंदर से रहेगा वो. एंड हमने जो दिखाया बटरफ्लाई शेप, दैट इज द स्पिनॉइड बोन. इस स्पिनॉइड बोन को, इफ दिस इज द स्कल, दिस इज द ऑर्बिट, ये तुम्हारे ऑर्बिट है, एंड दिस इज योर विच वन, ये वाला, दैट इज कॉल्ड जाइगोमेटिक प्रोसेस. और ये आपका स्कल पीछे से आ रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको ये कॉन्डाइल है, इसको ही बोलते हैं कॉन्डाइल. हमने बोला ना द ह्यूमन स्कल इज बाय कॉन्डाइल, तो एक कॉन्डाइल इधर से और दूसरा कॉन्डाइल पीछे से, इट्स अ बाय कॉन्डाइलर. ओके, सो दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ स्कल. ये आपका मैंडिबल है. ओके, जिससे हम लोग खाते हैं, दिस इज द मैंडिबल. ये अगर आप बाहर से देखोगे तो मैंने बोला था यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ से क्या आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड.
तो यहां अंदर रहेगा आपका स्पिनॉइड बोन, ओके, और उसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई शेप। और इस स्पिनॉइड बोन को अंदर से कैविटी रहेंगी, जिस कैविटी का नाम है सीला टर्सिका। इट फॉर्म द सीला, SELLA, सीला टर्सिका, उसको बोलते हैं सीला टर्सिका। इफ यू रिमेंबर देयर इज वन ग्लैंड, हम लोगों ने हार्मोन के चैप्टर में केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एक ग्लैंड पढ़ी थी, उस ग्लैंड का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्पिनॉइड बोन की सीला टर्सिका में रहेगा। दैट इज द ओनली क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि स्पिनॉइड बोन में की जो कैविटी है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड सीला टर्सिका। स्पिनॉइड बोन, सीला टर्सिका, कोई बाकी के नेम्स में एस नहीं है। देखो स्पिनॉइड बोन इज सीला टर्सिका, सीला टर्सिका में कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्पिनॉइड बोन। एंड द लास्ट वन इज द इथमॉइड बोन। इथमॉइड वो भी सिंगल रहेगा। इथमॉइड बोन दे फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट ये जो आपकी ऑर्बिट के जो पार्ट है अंदर से, और ये थोड़ा सा आपका नोज का जो पार्ट है, ये पार्ट कौन बनाता है, आपका इथमॉइड बोन। सो इथमॉइड बोन इज यूज्ड टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट एंड पार्ट ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द नोजम। मैंने पार्ट क्यों बोला, क्योंकि ऑर्बिट इज फॉर्म बाय लाइक ऑलमोस्ट 7 बोन, तो ये फ्रंटल बोन भी नीचे जाएगा, स्पिनॉइड बोन तो है ही ऑलरेडी, इथमॉइड बोन नीचे से भी रहेगा, लाइक देयर आर लॉट ऑफ बोन, जाइगोमैटिक बोन इधर से आएंगे, सो देयर आर लाइक सो मेनी बोन्स व्हिच फॉर्म्स द ऑर्बिट। लेकिन वो हम लोग को सिलेबस में नहीं है, हमको क्या है, सिर्फ इन केस ऑफ सिलेबस फ्रंटल बोन, पीछे के 2 पैराइटल बोन, सबसे पीछे वाला यहाँ जो रहेगा हमारे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन, साइड वाले टेम्पोरल बोन, और ये जो तुम्हारा नीचे बेस ऑफ द स्कल इज फॉर्म बाय व्हिच वन, दैट इज कॉल्ड द स्पिनॉइड बोन। स्पिनॉइड बोन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाली कैविटी उसको बोलते हैं हम लोग सीला टर्सिका। और ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मीन्स दिस इज अ कैविटी इन विच आई बॉल विल बी लॉज, और आई बॉल रहेगा आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की जो वॉल है कौन बनाता है आपका, दैट इज कॉल्ड द इथमॉइड बोन। सो इथमॉइड बोन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ऑर्बिट और वॉल ऑफ ऑर्बिट। सिर्फ ऑर्बिट की नहीं, आपके नाक की भी थोड़ी सी वॉल कौन बनाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड द इथमॉइड बोन। सो दिस इट, सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी बोन इन विच इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम। This is your which one, the first one is frontal bone, ये दोनों तुम्हारे that is called parietal bone, इधर वाला टेम्पोरल बोन एक और इधर वाला एक टेम्पोरल। सो टेम्पोरल और पैराइटल दो दो, अगर हम लोग स्कल को पीछे ले जाते हैं, सो दिस इज योर विच वन, ऑक्सीपिटल बोन। ये क्या है, आपके 2 कॉन्डाइल है, ओके। सो आई जस्ट एनलार्ज द फिगर, दीज आर द 2 कॉन्डाइल, इसलिए हम लोग स्कल को बायकॉन्डाइलर बोलते हैं, राइट। नाउ दिस इज योर विच वन, ऑर्बिट और नोज के पार्ट कौन बनाता है, दैट इज कॉल्ड इथमॉइड बोन। और अगर आप देखोगे नीचे से तो यहाँ आएगा पूरा बटरफ्लाई शेप आपका स्पिनॉइड बोन, वहां क्या रहेगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर विच वन, द ग्लैंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, द वेरियस बोन विच आर प्रेजेंट इन द स्कल। कभी कभी आपको सूचर करके पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय सूचर। सूचर मीन्स, सूचर यानी हम लोग जो स्टिच करते उसी को हम लोग सूचर बोलते। तो मैंने आपको पहले जो दिखाया था, इफ यू सी हियर, ये बोन एक दूसरे को अटैच है, यहाँ कोई जॉइंट नहीं है मूवमेंट के लिए, देखो एक दूसरे को ऐसे अटैच है इस तरह से, राइट। तो जैसे हम लोग टाके मारते हैं उसको बोलते हैं सूचर, इसको हम लोग बोलते हैं सूचर। सो कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सूचर्स दे आर प्रेजेंट इन द स्कल। तो स्कल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 सूचर याद रखने हैं। वन इज कॉल्ड कोरोनल सूचर, second is your lambdoid suture, and third is your which one, sagittal suture, sagittal suture. These are the 3 types of suture. अब आपको देखना है where is the coronal suture, okay? So coronal suture कहाँ रहेगा, coronal suture, you see coronal suture is present in between
फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। तो ये क्या होगी आपके, देखो ये पूरा जो सी शेप का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरोनल सूचर। हो गया आपका, दिस इज पैराइटल बोन। तो ये क्या होगी आपकी, देखो ये पूरा जो सी शेप का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरोनल सूचर। हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड कोरोनल सूचर। ओके, सेकंड इज विच वन, सजाइटल सूचर। तो ये जो आपका दो पैराइटल बोन के बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। कुछ बुक्स में डबल जी है, कहीं पर जी है, दैट इज कॉल्ड सजाइटल। है आपका विच वन, दैट इज कॉल्ड द लैम्डॉइड सूचर। ये है आपका पीछे से। ओके, सो आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर। ये जो आपको एल जैसा लग रहा है, दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द लैम्डॉइड सूचर। तो दो पैराइटल के पीछे वाला और पीछे ऑसिपिटल लोब है, तो इसको बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। दिस इज योर सजाइटल सूचर और सामने वाला आपका पैराइटल सूचर। ओके, और एक और है, आई डोंट थिंक दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड between parietal and temporal there is one more suture, that is called lateral suture, that is called the lateral। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका parietal bone है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ आपको ठीक से समझ में आएंगे सारे सूचर। ये आपका सी शेप वाला कोरोनल, ये दो पैराइटल के बीच में वाला, दैट इज कॉल्ड सजाइटल। ये जो दिख रहा है आपको पीछे से लैम्डॉइड, और ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। तो पैराइटल और ये कौन सा लोब हो गया आपका, टेम्पोरल। तो ये जो सूचर है, ये जो मैंने दिखाया, दिस सूचर इसको लैटरल सूचर, लैटरल साइड में है ना स्कल के, देखो इसको लैटरल बोलते हैं। इसको कौन सा बोलेंगे, लैटरल साइड। सो जो आपको लैटरल साइड से सूचर दिख रहा है, राइट, सो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लैटरल सूचर, या कुछ बुक्स में इसको दैट इज कॉल्ड स्क्वाइमोजल सूचर भी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, वेरियस पार्ट ऑफ द क्रेनियम। तो ये हो गया आपके क्रेनियम बॉक्स के 8 बोन। ओके, और सूचर भी हम लोगों ने ले लिए साथ साथ में। ओके, तो 8 ही बोन हो गया। अभी हमारे पास और कितने बोन बचे, लाइक इट्स 21 बोन बचे आपके। Now second is facial bone, facial F14। क्या याद रखने को बोला मैंने, F14। So this is your skull। ये हो गया आपका facial skeleton पूरा। ओके, so facial consist of how many bone, there is like 14 bone। ओके, और कौन से 14 बोन है, सबसे पहले nasal bone। सबसे पहले we start from here, that is called nasal bone। These nasal bone are one pair of nasal bone, one pair। After nasal bone, inside the nose, I will just make it big। यहाँ जो आपको दिख रही है, ये जो दिख रहे हैं 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल ख्वांचा। इसको बोलते हैं नेजल, CONCHAE, ख्वांचा, नेजल ख्वांचा, या आपके बुक्स में इसको हम लोग टर्मिनेट्स बोलते हैं। ये भी वन पेयर। देन वोमर, then there is one more bone that is called vomer। okay, so vomer, it is a lower part of, ये जो आपका ये बीच में सेप्टम रहेगा, इसका जो लोअर पार्ट रहेगा यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, vomer। so vomer bone, it is only one in number, not in pair। okay, then the lacrimal bone, then the lacrimal bone, आँख के पास आपका जो टीयर निकल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल बोन। तो एक इधर से और एक इधर से ऑर्बिट के अंदर। सो दे आर ऑल्सो इन पेयर, दे आर ऑल्सो इन पेयर, लैक्रिमल बोन। देन दिस टू आर लाइक, one is here and another is here, that is called
मोस्ट इंपॉर्टेंट जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, इसको चिक बोन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चिक बोन। ये है ना आपके चिक बनाता है, राइट? सो इट इज चिक बोन, दे आर ऑल्सो इन पेयर, चिक बोन्स आर ऑल्सो इन द पेयर। Then there is a palatine bone, palatine bone, Palatine, palatine bone। आपका जो माउथ के अंदर का जो रूफ है जिसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं, राइट? सो ये वाला, ओके ये दिख रहा है आपको, दिस इज द पैलेट, माउथ का रूफ, माउथ का रूफ। तो एक इधर से है और एक इधर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन। क्या बोलेंगे हम इसको? दैट इज कॉल्ड द पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन कितने रहते हैं? दे आर ऑल्सो, दैट इज वन पेयर, दे आर ऑल्सो इन पेयर। और कौन सा बचा है? एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपका, ये ऊपर का, दैट इज कॉल्ड मैक्सिला, दैट इज कॉल्ड मैक्सिला, अपर जॉ बोलते हैं इसको, मैक्सिला। हम लोग क्या बोलते हैं? अपर जॉ, मैक्सिला, जिसमें हम लोग अपर टीथ बियर रहता है, ओके, दैट इज कॉल्ड अपर जॉ, दैट इज ऑल्सो इन पेयर, ओके। और नीचे वाला व्हाट इज दैट? मैंडिबल, इसको हम लोग लोअर जॉ बोलेंगे, जिसमें हम लोग लोअर जॉ के टीथ है। सो इफ यू सी द स्कल, मैक्सिला इधर से एक रहेगा, यहां रहेगा, और एक इधर से रहेगा। द मैक्सिलरी बोन इट इज इन पेयर। और ये जो मैंडिबल है ये पूरा एक बोन है, मैंडिबल इट इज ओनली अ वन बोन, ओके, मैंडिबल इज वन बोन, ओके। अगर आप क्रेनियम को अगर याद करोगे तो मैंने बोला था कि इन क्रेनियल बोन ऑल द बोन्स आर सिंगल एक्सेप्ट टू, दे आर पेयर्ड। और पेयर्ड बोलने के लिए मैंने कौन सा याद रखना? पेयर्ड पराइटल, ओके। सो पराइटल एंड टेम्पोरल दे आर पेयर बोन। तो एमसीक्यू में वही पूछते कि क्रेनियल बोन में पेयर कौन से। अब यहां क्या है? ऑल आर पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड एक्सेप्ट टू, जो अनपेयर्ड है। सो वो कौन से अनपेयर्ड? वोमर एंड सेकंड इज विच वन? मैंडिबल, ओके। सो ये दोनों कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो फेस में आपको अनपेयर्ड पूछेंगे सिंगल, और क्रेनियम में आपको पेयर्ड पूछेंगे, राइट? कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर पेयर्ड कौन से? दो ही है, पराइटल एंड टेम्पोरल। और यहाँ पर वोमर, यहाँ एक वोमर और नीचे तुम्हारा ये पूरा मैंडिबल। वोमर एंड मैंडिबल दे आर बेसिकली सिंगल, और बाकी सारे पेयर्ड है, राइट? सो इफ यू कैलकुलेट लाइक 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and this one is 14. So facial 14, okay. So that's the only thing you have to remember about your which one, that is the facial skeleton or not facial skull. So अभी कितने हो गए आपको? 14 and 8. How many bones are there? If it is 14 and 8, 22. अभी हम लोग को बाकी भी बोन देखने हैं, राइट? सो बाकी बोन देखने हैं तो हमारे दो रह गए। एक है ईयर ऑसिकल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिखते ही नहीं है। और एक बचा है आपका लास्ट, हायोइड बोन। ईयर ऑसिकल कितने? 6 और हायोइड 1, सो टोटल हो गया आपके 29। तो हम लोग देखते हैं अभी ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल में एक ही इंपॉर्टेंट है, दे आर स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। सो हियर, ये आपका दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। यहां आपका ईयर रहेगा, राइट? यहां आपका ईयर रहेगा। सो इफ यू सी हियर, निकाल देता मैं, यहां से आपका ईयर में रहेगा। इफ यू दिस सी, दिस इज द होल, दिस इज द ईयर ऑसिकल। इसके अंदर आपका रहेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो आपके साउंड की वजह से वाइब्रेट करेगा। सो आई विल ड्रॉ हियर। सो दिस इज द ईयर, ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, दिस वन। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन रहेगा जिसको हम लोग ड्रम बोलते हैं। जैसे बैंड को ड्रम रहता है ना, वो कैसे हिलता है लाइक बिकॉज ऑफ द साउंड, वैसे ड्रम, इसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर साउंड वेव को ट्रांसफर करने के लिए 3 बोन रहेंगे। एक का नाम है मैलियस, पहला वाला, दूसरा है इनकस, और तीसरा है स्टेपिस। क्या नाम है? मैलियस,
फर्स्ट वन इज मैलियस, ये हाइड बाद में देखते हैं. सेकेंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेपिस. और आपका जैसे साउंड इधर से आएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका आगे पीछे होगा, तो साथ में बोन का भी मूवमेंट चालू हो जाएगा. एंड दिस स्टेपिस इज ओपन इनटू योर विच वन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ईयर. दिस स्टेपिस इज ओपन इनटू इंटरनल ईयर, और वहां से आपका साउंड वेव किधर जाएगा, आपके ब्रेन में, और वहां से आपको हियरिंग सुनाई देगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड ईयर. वो हम लोग सेपरेट देखते हैं दूसरे चैप्टर में. अभी हमको देखना है कि है कहाँ बेसिकली. तो हम लोग स्कल के अंदर, और स्मॉलेस्ट बोन है, कौन से बोन है, smallest bone. Okay, these are basically the smallest bone. Okay, so what is the name of this smallest bone? Malleus incus stapes. बहुत बार आपको पूछते हैं कि बीच में वाला कौन सा है. अब ये मैंने बोला कि एक रहेगा that is called malleus, दूसरा रहेगा incus, और तीसरा रहेगा stapes. और ये आपकी ऑडिटरी में, और यहाँ आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो बहुत बार आप कंफ्यूज रहते कि मैलियस कौन सा है, इनकस कौन सा है, और स्टेपिस कौन सा है. तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, मिस करके आपको याद रखना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द सीक्वेंस भी क्वेश्चन रहेगा. क्या याद रखना है आपको, मिस. पहला मैलियस, इनकस, और तीसरा स्टेपिस. सो ईयरोसिकल इधर के 3 और इधर के 3 कितने हो गए, इट इज 6 इन नंबर. सो इट इज मिस आपको याद रखना है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस. अब इनका नाम मैलियस है, इनकस है, स्टेपिस क्यों है, बिकॉज दे आर शेप लाइक, जो हम लोग औजार यूज करते हैं, राइट. सो दे आर शेप लाइक दैट. सो मैलियस आपका इस तरह से रहेगा, इनकस इस तरह से रहेगा, और स्टेपिस जो हमको फुट प्लेट, आपको याद है, लाइक वो चप्पल को ये करने के लिए, ठीक करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस औजार को, स्टेपिस. तो उस शेप जैसे ये बोन है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनकस, मैलियस एंड स्टेपिस. सो फॉरगेट अबाउट दैट, हमें वो नेक्स्ट चैप्टर में है. अभी हमको याद रखना है कि इधर 3 कान के अंदर और इधर 3, दैट इज मैलियस, इनकस, स्टेपिस. तो इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. विच बोन इज इन द मिडल, तो इनकस. विच बोन इट इज आउटर, मैलियस. विच बोन इज द इनर मोस्ट, दैट इज द स्टेपिस. What is the smallest bone of your body? Malleus, incus, stapes. और क्या बोल सकते हैं, which bone is attached to the tympanic membrane? Malleus. Which bone is attached to the oval window of internal ear? Stapes. ठीक है. So miss आपको याद रखना, that is a earosicle. और लास्ट का जो बोन है आपका, that is called hyoid bone. That is called hyoid bone. So hyoid bone को कुछ लोग टंग के नीचे रहता है, right? It support the tongue. तो अभी अगर हम लोग ये स्कल देखेंगे थोड़ा सा, तो अभी आपको सिर्फ मैंडिबल दिख रहा है, राइट. यू कैन नॉट सी एनी बोन हियर. ओके, सो हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ कहाँ है बोन. वी कैन नॉट सी दैट बोन. ओके, बिकॉज दिस बोन इज यूजुअली फाइब्रोकार्टिलेजिनस टाइप ऑफ बोन. यानी डेड बॉडी होने के बाद ये जल्दी से क्या हो जाता है, लाइक डिसइंटीग्रेट हो जाता है. बाकी आपके बोन नहीं, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड. सो नॉर्मली आपको हाइड बोन नहीं दिखेगा, राइट. लेकिन वो रहता कहाँ है कि यहाँ पर, right. This is the hyoid bone. Okay, that is support the your, that is called base of the tongue. अगर आप यहाँ टच करोगे, you can feel there is a bone. हॉर्स शू की तरह रहेगा. आपको पता है ना, हॉर्स का शू इस तरह से रहता है, राइट. So it is the shoe of the horse, if you remember, and horseshoe shape रहेगा. hyoid horse shoe, ऐसे याद रखना है. hyoid bone, that is called horseshoe shaped bone. okay, क्या करता है, सपोर्ट, टंग को सपोर्ट करेगा, थ्रोट को सपोर्ट करेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द hyoid bone. एंड दिस hyoid bone इज अ सिंगल बोन. फ्यूजन 4-5 बोन, 3-4 बोन से फ्यूज होकर बनता है. So 8 and 14, 22, 22 and 6, 28, and 1 is 9. So whole of your skull, it is formed by how many bone? That is called 29 bone. Okay. Now this is all about your which one? Axial skeleton का हम लोगों ने क्या देखा है अभी? Skull देखा है, right? So अब देखते हैं हम लोग लास्ट में what are the function of skull? Skull के function वही तो important है. Function, right? Easy है, right? What is the function of the skull? क्या रहेगा स्कल का फंक्शन? आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं ना क्रेनियम को, तो आपके ब्रेन का प्रोटेक्शन करना, राइट. और किसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं?
आपके ईयर का प्रोटेक्शन करना है, आपके आईज का प्रोटेक्शन करना है, राइट। आपका लाइक मैक्सिला और मैंडिबल को सॉकेट प्रोवाइड, टीथ मिलता है, राइट। आपके इस जॉ की वजह से आप च्यूइंग कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन परफॉर्म द च्यूइंग, राइट। सो लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। एंड ईयर ऑसिकल के क्या फंक्शन है? कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, राइट। सो कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, अगर ईयर ऑसिकल ही नहीं होता तो आपको साउंड वेव का कंडक्शन होता क्या? नहीं, ओके। तो कंडक्शन ऑफ साउंड वेव, ब्रेन, आई को, ईयर को प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट। ऑल दीज आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द स्कल. So this is all about the first part of your axial skeleton, that is called skull, and skull is formed by how many bones? 29 bones. Okay, so this is the three-dimensional view of the skull, right? So this is your facial skeleton. Okay, this is your lateral side of the skull, this is your back side of the skull. अगर आप नीचे जाओगे, ये नीचे से आपको ये बड़ा ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड फोरामेना मैग्नम. ओके, थोड़ा सा हम लोग नीचे लेते हैं. नाउ दिस इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द, एंड दीज आर द मैक्सिला एंड मैंडिबल. किसको देते हैं वो? दैट इज द टीथ को, राइट. सो दे प्रोवाइड सॉकेट. ये आपका सॉकेट देख रहे हैं, दिस इज लाइक टीथ आर गोइंग टू बी इन ईच सॉकेट को. सो हम लोग टीथ वगैरह बाद में देखते हैं, राइट. एंड दिस इज योर क्रेनियम. क्रेनियल कैविटी के अंदर हम लोग अगर जाएंगे तो वी कैन सी देयर इज अ कैविटी जिसके अंदर क्या रहेगा? ब्रेन. और ब्रेन के नीचे क्या निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द स्कल. उसके बाद हमको देखना है वर्टिबल कॉलम, रिब्स, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम. रिब्स स्टर्नम तो एक नहीं आएगा, वर्टिबल कॉलम इज द नेक्स्ट वन.